friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. I welcome you all for this current affair module for July 2020, week number 2. I'm sure you must have gone through our first module and it was wonderful, dosto. We love it that so many of you have watched it and you liked it, okay? And here we are bringing this week number 2. This is the sought after content by entire India of Pro Talent. Pro Talent is very much known for this wonderful content, दोस्तों प्लीज इसको फॉलो करिएगा. सो जुलाई 22 वीक नंबर 2 का करंट अफेयर मॉड्यूल इज अवेलेबल फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस ऑन दिस. सो दोस्तों दिस करंट अफेयर मॉड्यूल इज अ पार्ट ऑफ दिस क्लैट 2021 मास्टर्स कोर्स. दोस्तों ठीक है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलते हैं, स्टडी मटेरियल आपके घर पे डिलीवर होता है और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, which is a sought after you can say content of Pro Talent for large number of students across India. Okay, here you are also getting weekly target and we also provide study material separately and you can say test series. Okay, that is what the available part to you. Let's start to talk about current affair module for you, you can say of this week, week number 2, July 2020. Let's start. So the first news is about CBSE. Okay, they have tried to reduce the syllabus by 30%. कंट्रोवर्सी हो गई कि उन्होंने क्या टॉपिक निकाले क्या टॉपिक नहीं निकाले. वी आर नॉट गेटिंग इनटू दिस कंट्रोवर्सी बट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड that due to COVID-19 there is a disruption in the education system and that's the reason why they have reduced for class 9 to class 12. Okay, this is what you should understand. This is what you should understand. ठीक है, core concept will remain. ठीक है, about 25 crore students have been affected since the school across the country have been closed since March. So this is really a very difficult scenario for the students. There is no indication कि school कब चालू होगी. ठीक है, some of them are saying that it is September, some of them are saying in November, some of them are saying January, February. Now that's very difficult. Okay, ठीक है, so teaching and learning may resume in this online digital platform which is online classes, television और radio programs के द्वारा इसको किया जाता है. So thereby students are getting affected by that. What has NCERT has done? NCERT has provided input on how to teach the curriculum using various strategies. They have also prepared some alternative pedagogy for class 1 to class 12 students so that students are getting supported. USA coming down to WHO issue. So USA says that WHO has not done right things in corona cases and thereby we are not supporting it. Okay, so Trump administration has formally notified United Nations of its withdrawal from WHO, World Health Organization. ठीक है, उनका मतलब यूएसए का कहना है कि you are not managing well. So when you are not managing well, why are you be there? Yes, in fact we have given you all the money. ठीक है, so they are giving some around 15% of money, which is huge. ठीक है, so why USA took this decision? USA is not happy about how WHO has responded to this corona cases. Okay, it accused WHO to bowing to China. China जो बोलता है उन्होंने बात मान ली and it is incidental to note that USA is the agency which is largest donor and provides more than $400 million per year to WHO. और ये WHO इस तरीके के एक्शन against their donor is really you can say not you can say explainable. Okay, so कभी कभार ऐसा लगता है that WHO might not have done anything bad. It is the situation was so unpredictable that nobody could reach to that conclusion. ठीक है, कि क्या करना चाहिए, पैंडेमिक अभी घोषित करना चाहिए, बाद में घोषित करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसके बारे में तो कोई क्लैरिटी बन ही नहीं सकती. ठीक है, ऐसा भी मान सकते हैं. ओके, सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस WHO में से यूएसए निकल जाएगा. इट विल डेफिनेटली टेक अ ईयर्स टाइम बिफोर दे लीव. अब उसके बीच में इलेक्शन आएगा यूएसए का इलेक्शन may possibly change the scenario. The new administration may come and that new administration will say that we want to be part of WHO. Okay, so let's see क्या सिनारियो बनेगा. ओके, ग्रेट दोस्तों, है ना, ये कहानी है आपके सामने शेषनाग और सुपर एनाकोंडा के बारे में. दोस्तों दे आर दी यू कैन से मतलब नॉट नॉर्मल ट्रेन्स बट दे आर एबनॉर्मली very long trains. Okay, and they are basically for you can say carrying lot of goods. ठीक है, they are known as Sheshnag and Super Anaconda
आपने अखबार में पढ़ा होगा. लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है. सो इंडियन रेलवे हैज क्रिएटेड अ रिकॉर्ड by operating the longest freight train named शेषनाग. ठीक है. उसमें करीबन you can say 251 wagons है which is pulled by 4 electric locomotives, मतलब 4 इंजन उसको खींचते हैं, which is to the tune of around 2.7 किलोमीटर 2.8 किलोमीटर लॉन्ग. दिस इज ह्यूज है ना. आप मानो you can say स्टेशन पे खड़े और आपके सामने से शेषनाग जा रहा है, सो आपको शायद वेट करना पड़े करीबन 2 से 3 मिनट तक कि कंटिन्यूस वो ट्रेन जा ही रही है. दैट्स ह्यूज. ठीक है. इससे फायदा ये है दोस्तों कितना लंबा है, सो दे आर एबल टू एक्चुअली कैरी लॉट ऑफ कंटेंट ऑन इट. ओके. और ये जो ज़्यादा कंटेंट कैरी करने की वजह से यू कैन से इट विल बी चीपर फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल. ओके. दिस इज व्हाट दे आर डूइंग इट. द फीट वाज अचीव्ड बाय साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन. ये याद रखिएगा. इसके पहले वी हैड सुपर एनाकोंडा, नाउ शेषनाग, अब आएगा अनंतनाग, ऐसा शायद हो सकता है. ठीक है. दिस इज हाउ द आइडिया इज. मुंद्रा पोर्ट के बारे में बात हो रही है दोस्तों. मुंद्रा पोर्ट इज इंडियाज बिगेस्ट कॉमर्शियल पोर्ट बाय वॉल्यूम एंड इट इज अ फ्लैगशिप पोर्ट बाय अदानी ग्रुप. ओके. इट इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट. अब ये प्रूव हो चुका है दैट इट इज लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट. इसने रिप्लेस कर दिया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ऑफ मुंबई, उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया. ठीक है दोस्तों. ये रहे इंडिया के सबसे बड़े बड़े पोर्ट. ओके. कहाँ कहाँ पर है? यू हैव मुंद्रा. ठीक है. उसके बाजू में वाडीनार पोर्ट विच इज एट द्वारका. ओके. देन वी हैव दहेज इन यू कैन से गुजरात, दैट इज इन भरूच के पास. उसके बाद यू कैन से एपीएम टर्मिनल पीपावाऊ में अमरेली के पास. सूरत के अंदर हजीरा पोर्ट एंड देन यू कैन से महाराष्ट्र का डिगी पोर्ट. ओके. इसके अलावा यू हैव यू कैन से कराईकल, यू कैन से कत्तुपल्ली, कृष्णपट्टनम, काकीनाडा, यू कैन से विशाखापट्टनम का पोर्ट एंड दिस इज धामरा पोर्ट. ये सब प्राइवेट पोर्ट्स है दोस्तों. ये सब प्राइवेट पोर्ट्स है, गवर्नमेंट के पोर्ट नहीं है. ठीक है. सो दोस्तों ये जो अदानी पोर्ट का जो मुंद्रा का जो यू कैन से सबसे आगे बढ़ गया. ठीक है. दैट हैज टर्न आउट टू बी अ काइंड ऑफ बिगेस्ट पोर्ट और ये मेजर होता है यू कैन से TEU के द्वारा, which is called 20-foot equivalent unit. TEU is a standard size of container and a common measure of the capacity of this container business world. Okay, so that turned out to be really very important. ठीक है. जून महीने में है ना इंडिया ने पहली बार एक मंथली ट्रेड सरप्लस रजिस्टर किया इन 18 ईयर्स. 18 सालों में पहली बार ऐसा ट्रेड सरप्लस हुआ. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड सरप्लस? ट्रेड सरप्लस का मतलब होता है कि हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, हम कितना इंपोर्ट करते हैं, उसका नेट इफेक्ट ठीक है शुड बी पॉजिटिव. दैट मीन्स वी आर इंपोर्टिंग लेस कंपेयर टू एक्सपोर्टिंग. सो हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है कंपेयर टू इंपोर्ट, सो उसको बोला जाता है सरप्लस. ओके. आप देख सकते हैं इतने सालों में वो नीचे ही जा रहा. सो इट वाज नॉट वेरी पॉजिटिव. इट इज इन द मंथ ऑफ जून वी हैव एक्चुअली ग्रोन अप and it is helping us. Okay, so initial estimates of June show that a trade surplus is of the tune of $800 million. That is huge. ठीक है. Import was at 21.1 billion and export was 21.9 billion. क्यों import कम हो गया? ठीक है. Possibly lockdown. Okay, so this was made possible as exports have slowed down to around 12% while imports have fallen by 49%. So हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा तो नहीं, but export has reduced by lesser percentage while import might have increased by huge percentage. So last time India had a positive balance in January 2002, we had a surplus of $10 million. अब उसके सामने we are at a huge number today which is $800 million. ठीक है. Fourth highest seizure of opium from India. ओपियम ठीक है आपको पता होगा दोस्तों, ओपियम एक तरीके का ड्रग होता है और ये ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाले जो रीजन में वहाँ से ये काफ़ी मूव होता रहता है. ठीक है. सो इट इज़ द 4th हाईएस्ट सीजर ऑफ ओपियम. पकड़ा गया दोस्तों ओपियम इन 2018. ठीक है. इट वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया आफ्टर ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. ओके. सो दिस इज अ ह्यूज ओपियम happening from Afghanistan दोस्तों. ठीक है. Maximum of 644 tons of opium was seized in Iran, followed by
27 टन्स इन अफगानिस्तान एंड 19 टन्स ऑफ पाकिस्तान, और इंडिया में 4 टन पाया गया था 2018 में। तो सबसे आगे ओपियम इज देयर इन ईरान। दोस्तों ईरान एक बड़ी परेशानी वाला कंट्री है, देखा जाए तो ईरान में यंग पीपल है ना, व्हेन दे अगेन से डू देयर बिजनेस एंड एक्टिविटीज, ठीक है, दिन में करीबन 4 से 5 घंटा, ठीक है, वो ये ओपियम कंजम्पशन करते हैं। दिस इज ह्यूज, ठीक है, मतलब वहाँ पे यूथ बर्बाद हो रहा है। This is how this scenario is happening. ठीक है, about 84% of total opium produced is in Afghanistan, from where it is supplied to the neighboring country. Myanmar is also accounting for some around 7% of global opium production. आपको याद होगा दोस्तों, ओपियम ही तो एक ऐसी चीज है जो अफगानिस्तान में होता है, जो ब्रिटिशर के कंट्रोल में होता था, और ब्रिटिशर्स इस ओपियम को चाइना में बेचते थे, और जिसकी वजह से चाइना के साथ यूके, दैट इज ब्रिटेन और चाइना का एक ओपियम वॉर हुआ। उस ओपियम वॉर में चाइना हैड टू गिव हांगकांग टू ग्रेट ब्रिटेन फॉर 99 ईयर लीज। ये सुनो, ये न्यूज़ आपको पता होगी। वेरी गुड दोस्तों। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपियम एंड हेरोइन? हेरोइन इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, you can say, morphine extract from seed of opium poppy. Opium is basically a kind of let's say natural outcome, while heroin is a manufactured item. ठीक है, global area under opium poppy cultivation has declined, ठीक है, but still the yield is increasing. So it went down by 17% in 2018 and by 30% in 2019, but overall yield has been rising in a huge way. So that's why that is how the business is happening. First chairman of IFSCA. What is IFSCA? International Financial Services Center Authority. The gentleman is I. Srinivasan. He has been appointed for some around 3-year period. December 2019, a bill was set up for unified authority that will be regulating financial activities across all IFSCs in the country. It was passed by the Parliament April 2020. Finance Ministry established IFSCA. ठीक है, इंडिया का IFSCA का headquarter is in Gandhinagar. This is at Gift City. If you know full form of Gift City, please tell me what is the full form of this Gift City. Okay, चलिए ग्रेट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. Lot of tensions are happening in Ethiopia. दोस्तों इथियोपिया के अंदर जैसे इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई है, वैसे इथियोपिया और एरिट्रिया का लड़ाई है. ठीक है, सो देयर इज एरिट्रिया विच गॉट एक्सटेंडेड. ये जो एरिट्रिया नाम की जो जगह है ना, ठीक है, इट गॉट सेपरेटेड बाय सम अराउंड 1995 में ये नया देश बन गया था, एरिट्रिया और इथियोपिया. और अभी भी वहाँ लड़ाइयाँ ये चल रही है कि एरिट्रिया इज क्लेमिंग कुछ एरिया ऑफ इथियोपिया, इथियोपिया सेइंग कुछ एरिया ऑफ एरिट्रिया, जस्ट लाइक इंडिया पाकिस्तान, है ना. ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, और इसीलिए आपको याद होगा इथियोपिया में ये पीस प्रोसेस लगाने के लिए अभी अहमदी साहब को 2019 का नोबेल पीस प्राइज मिला था. ये नोबेल पीस प्राइज अभी अहमदी साहब को इसीलिए मिला क्योंकि इन्होंने इथियोपिया और एरिट्रिया के साथ जो बरसों से लड़ाई चल रही थी उसके अंदर उन्होंने पीस लाने की कोशिश करी थी. अब देखते हैं ये 2019 में उनको नोबेल पीस प्राइज, और 2020 में अभी भी परेशानियां चल रही है. ठीक है, सो इज अ फेमस सिंगर. देयर इज अ ग्रूसम डेथ ऑफ एटलीस्ट 80 प्रोटेस्टर following a cold-blooded murder of Ethiopian political singer, you can say Hakalu Hundesa. ठीक है, so there is a widening fault line happening in Ethiopia between Ethiopia and Eritrea. Okay, चलिए ग्रेट दोस्तों. So this is iconic musician and he was coming from Oromo ethnic community. ठीक है, कौन सी कम्युनिटी से आते थे ये? ओरोमो एथनिक कम्युनिटी वाले भाई साहब एबी अहमदी. ये सुनो, एबी अहमद has received Nobel Peace Prize, ठीक है, for their 2018 peace agreement with Eritrea and Ethiopia. इसकी वजह से इनको you can say ये Nobel Peace Prize मिला था. Anyway, so this guy you can say singer was killed on June 29. ठीक है, he used to sing about political issues and he was talking about Oromo marginalization. ठीक है, since 2015 there have been protests in Oromia.
that's a place in Ethiopia, sparked by the decision to extend the administration of the capital into the Oromia region. So दोस्तों, overall fault line are still continuing and there are a lot of problems are happening in Ethiopia. ओके सो दोस्तों, मैंने आपको बताया इथियोपिया और ये एरिट्रिया. दोस्तों, आपके बाजू में ये एरिट्रिया के बाजू में आपको दिख रहा होगा दैट इज कॉल्ड जिबौती. क्या बोलते हैं इसको? जिबौती. ओके, ठीक है, जिबौती. ओके, उसके बाजू में ये जो जगह है, ठीक है दोस्तों, बताइए इसका नाम क्या है? यस, ठीक है दोस्तों, ये एरिट्रिया, जिबौती और ये कंट्री, ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका. क्या बोलते हैं इनको? हॉर्न ऑफ अफ्रीका. ओके, चलिए ग्रेट दोस्तों, आपको याद होगा ये जो कंट्री के बारे में बात हो रही है ना, ये कंट्री पे भारत मूवी में, दैट इज सलमान खान की मूवी में दिखाया गया था दोस्तों. ये गल्फ ऑफ ओमान है ना, गल्फ ऑफ ओमान, ये रहा आपका येमेन. यहाँ से रेड सी पे जाते हैं दोस्तों और यहाँ पे आपका पर्शियन गल्फ है. ओके, और ये मेडिटेरियन सी है और ये ऊपर आपका ब्लैक सी है. ठीक है, टर्की के पास ब्लैक सी और काफ़ी मज़ेदार सी जगह है दोस्तों. तो टर्की के पास ब्लैक सी है, वहाँ पे काफ़ी लोग ज़्यादा घूमने जाते हैं. So we have an inner voice coming from Ranjit Sawant. Ranjit Sawant writes in Hindi. ठीक है, he is in 12th standard. ठीक है, he wants to appear for law entrance examination and is very positive about pro talents. You can say this current affair modules. Okay, and he also loves Namrata ma'am's sessions. So my dear students, ठीक है, do not miss out to like this channel, subscribe to this channel and watch our videos on a regular basis. आपकी पढ़ाई में आपको बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा, आप जरा भी चिंता नहीं करिए. ओके, सो दिस इज अवेलेबल, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन protalent.com. ठीक है, एंड इफ यू वांट टू, यू कैन से टेल समथिंग पॉजिटिव अबाउट प्रो टैलेंट, सेंड एन ईमेल टू अस ऑन protalentdigital@gmail.com. ओके, प्लीज आप वहाँ पे आपके पॉजिटिव वर्ड्स लिख सकते हैं और साथ में अपना फोटोग्राफ भी दे दीजिएगा. इट विल बी वंडरफुल दोस्तों. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर की बात करते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नेचुरल साइंस. यूलोफिया ऑब्टुजा, अ रेयर ऑर्चिड, ठीक है, विच वॉज फाउंड इन इंडिया. इट वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर 100 years. ये आपके सामने जो ऑर्चिड दिख रहा है, ठीक है ना, विच इज यू कैन से 100 सालों के बाद पाया गया है. इट वॉज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. IUCN रेड लिस्ट, IUCN पता होगा सबको, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. ठीक है, ये पता होना चाहिए दोस्तों. ठीक है, इट इज नाउ फाउंड इन दुधवा टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश. यस और नो? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 100 सालों के बाद पाया गया है. सिमिलरली वी हैव गोल्डन बर्ड विंग, which is also news related to natural science. You must know this. Golden bird wing is now India's largest butterfly. ठीक है, सबसे बड़ा बटरफ्लाई इंडिया का ये रहा, हिमालयन बटरफ्लाई गोल्डन बर्ड विंग. ओके, ठीक है, सो फ्रॉम they were identified at शिलोंग. ठीक है, प्रीवियस रिकॉर्ड वाज देयर इन 1932. सदर्न बर्ड विंग था जो 88 ईयर तक सबसे लंबा रहा. ठीक है, उसका 190 मिलीमीटर का स्पैन था. नाउ दिस गोल्डन बर्ड विंग हैज 194 मिलीमीटर का स्पैन. ठीक है, विच मीन्स इट इज बिकमिंग ह्यूज. काफी बड़ा है दोस्तों, 194 मीटर्स. ओके, ग्रेट. वी टॉक अबाउट एयरबॉर्न स्प्रेड ऑफ कोरोना. ठीक है, आई एम श्योर यू माइट हैव हर्ड दिस न्यूज. ठीक है, कि हमारे पास ये यू कैन से एयरबॉर्न यू कैन से डिजीज, एयरबॉर्न स्प्रेड ऑफ SARS-CoV-2 के बारे में बात हो रही है दोस्तों. ठीक है, सो देयर इज एन एविडेंस इज इमर्जिंग दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये हवा के द्वारा भी फैलता है. WHO has previously said that the virus spreads primarily through small droplets. ठीक है, जो जनरली यू कैन से नोज और माउथ से निकलते हैं और उसके बाद वो नीचे गिर जाते हैं. ठीक है, और फिर सरफेस पे आते हैं और सरफेस को टच करने से प्रॉब्लम होता है. ये नो? ठीक है, अब इन्होंने बोला कि हम जब बोलते हैं, है ना, तो ऐसे बहुत माइन्यूट ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो कुछ समय तक हवा में रहते हैं, जिसकी वजह से यू कैन से इफ यू आर इन अ क्राउडेड, क्लोज, पुअरली वेंटिलेटेड सेटिंग, ठीक है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हवा के द्वारा भी ये फैल सकता है. हालांकि खुले में ये नहीं होगा. ठीक है, अगर आप खुले में हो तो आपको कभी ये प्रॉब्लम होगा नहीं. ठीक है, ये किन्होंने बताया? करीबन 32 कंट्रीज में से 239 साइंटिस्ट have talked about this. ठीक है, now WHO has maintained that virus is spreading mainly by large droplets.
ठीक है, दे आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द पीपल बाय कफिंग, स्नीजिंग और थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। बट अब धीरे धीरे ये स्मॉलर ड्रॉपलेट के बारे में बातें हो रही है। दोस्तों वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, और इसकी वजह से काफ़ी नए नए प्रोटोकॉल आएंगे। आप देख रहे होंगे पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 केसेस आर हैपनिंग इन यूएसए, नंबर 2 पे ब्राजील है और नंबर 3 पे इंडिया है। नाउ इंडिया may possibly get peak in September as well. So let's see what is the scenario happening. Okay, bubonic plague in China. China has confirmed that there is a case of bubonic plague, ठीक है, in inner Mongolia। ठीक है दोस्तों, समझना जरूरी है कि ये bubonic plague जब 14th सेंचुरी में आया था उसने 50 मिलियन यूरोपियन लोगों को मार डाला था। 50 मिलियन, which is you can say 1 million is 10 lakh, 500 lakh, which means 5 करोड़ लोगों को मारा था। So that is huge, है ना, that is huge। So China बोलता है कि अभी भी भैया ये मंगोलिया में है। It is called bubonic plague because of swelling called buboes that is erupted on the bodies of the infected people। So this infection आपके शरीर में swelling डेवलप कर देता है। The infection disease is caused by bacteria। बैक्टीरिया का नाम है Yersinia pestis। ओके, इट इज हैपनिंग इन स्मॉल मैमल, ठीक है, एंड इट इज स्प्रेडिंग थ्रू देयर फ्लीज। ओके, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फ्लीज और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड टिश्यूज। ठीक है, सो ये ब्यूबोनिक प्लेग कैन बिकम फेटल अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाए, है ना। बैक्टीरिया कैन इन्वेड द ब्लड स्ट्रीम एंड कॉज सीवियर फेटल कंडीशन। इंक्यूबेशन पीरियड होता है बैक्टीरिया के लिए 1 दिन से लेकर 7 दिन के लिए। अर्ली ट्रीटमेंट मदद करता है, बट स्टिल फैटेलिटी रेट इज 30%, ह्यूज, है ना। सो ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। झारखंड इन्वोक्स आर्टिकल नंबर 131। whenever we talk about article number 131, we are talking about Indian Constitution, yes or no। Indian Constitution का आर्टिकल नंबर 131 was you can say invoked by झारखंड, ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा led government filed an original suit under article number 131। दोस्तों क्या सिनारियो है आर्टिकल नंबर 131 में? It is also termed as original jurisdiction of Supreme Court when there is a dispute happening between state and the you can say center government। okay, it is state versus central government के बीच में अगर कोई dispute हुआ, then you can go directly to the Supreme Court, and that is why it is called article number 131। क्या सिनारियो था? झारखंड ने ये इश्यू रेज किया दैट सेंटर का जो डिसीजन था टू ऑक्शन कोल ब्लॉक्स फॉर कॉमर्शियल माइनिंग। सो आई एम श्योर यू आर अवेयर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मॉडिफाइड अगेंस्ट सम लॉज रिलेटेड टू कोल माइनिंग, और ये कोल माइनिंग में जो बदलाव आया उसमें झारखंड को नुकसान हुआ। झारखंड ने बोला कि आपने जो डिसीजन लिया दैट्स अ यूनिलैटरल, यू डिड नॉट आस्क अस। हमें भी पूछना चाहिए ना। एट द एंड ऑफ द डे इट इज द इश्यू ऑफ अवर लैंड, हमारे लैंड पे कोल माइनिंग है, ठीक है, और इस कोल माइनिंग पे हमें पूछिए, उसके बगैर तो कैसे चलेगा। स्टेट सेज दैट इट इज हाई हैंडेडनेस, आर्बिटरी एंड इलीगल वे of taking decision making law। State is the owner of mines situated within the territory and the consultation of the state is needed। दोस्तों इसकी वजह से ये जो गवर्नमेंट ने कॉमर्शियल माइनिंग है ना, वो उन्होंने देना चालू किया कि भाई आप कोई भी उसको माइनिंग कर सकते थे। पहले माइनिंग की लिमिटेशन बहुत हुआ करती थी, अब इन्होंने बहुत सारी अलग अलग तरीके से रिलैक्सेशन कर दिए। उस रिलैक्सेशन की वजह से दिस माइनिंग इंडस्ट्री में फ्लरिश, but it will definitely impact the indigenous people, indigenous communities who are living in the nearby region। So 6 out of 9 coal blocks fall within the scheduled areas, yes or no, ठीक है। तो ये बड़ी परेशानी है। आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 33 मिलियन 16 मिलियन रेसिडेंट्स इन शेड्यूल्ड एरिया, है ना। झारखंड में 29% एरिया इज कवर्ड इन द फॉरेस्ट, और इसीलिए कोल ब्लॉक का ऑक्शन विल डेफिनेटली इम्पैक्ट दिस पीपल, और इसीलिए स्टेट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, ठीक है। एक फेडरल देश की निशानी होती है कि वो सब डिसीजन सभी लोगों के साथ ले, ठीक है। इस तरीके से सेंटर यूनिलैटरल डिसीजन लेगा तो स्टेट को बहुत सारा नुकसान होगा, ठीक है। दोस्तों आपने देखा होगा कोरोना की वजह से बहुत सारे पीपल, बहुत सारे लेबरर्स हैव टू माइग्रेट अगेन से टू वेरियस प्लेसेस। क्यों? सबसे बड़ा कारण था उनके लिए रेंटल प्रीमाइसेस वर नॉट अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस,
ठीक है। अर्बन एरिया में जिस घरों में रहते थे, वह जहाँ रेंट लगा कर रहते थे, वो रेंट बहुत महंगा होता था, ठीक है। अब सरकार को ये बात समझ में आई एंड सरकार हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन. Okay, so this is for urban migrants who are poor laborers. Okay, what are the details of this ARHCs? So existing vacant government funded housing complexes will be converted into this ARHCs, okay, and with a concession agreement of 25 years. Special incentives will also be offered to private and public entities if they are developing ARHCs, so that large part of workforce who are involved in manufacturing and services may possibly come back from rural area to, you can say, urban area, and they will be in a position to stay at a lower price. Okay, that is basically the objective. Operation Samudra Setu. दोस्तों आपको याद होगा ऑपरेशन समुद्र सेतु एंड ऑपरेशन वंदे भारत. ओके, ठीक है. सो हम बात करें इसमें से समुद्र सेतु. इट वाज लॉन्च प्राइमरली ड्यू टू कोविड-19 सिनेरियो. जो भी इंडिया के जो लोग अलग अलग आइलैंड में फंसे हुए थे उनको लाने के लिए. इट वाज अ नीड का अटेम्प्ट. ओके, सो व्हाट इज वंदे भारत बताना दोस्तों मुझे, है ना. ठीक है. ऑपरेशन समुद्र सेतु विच वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी ऑन May 5th as a part of national effort to repatriate Indian citizens who are stuck abroad due to COVID-19. दोस्तों उसके अंदर INS जलाश्वा and INS Airavate, Shardul and Magar, they participated in this operation for 55 days. It involved traversing more than 23,000, you can say, kilometer, and they brought 3,992 individuals. So this is very important दोस्तों. इसके पहले नेवी ने एक ऑपरेशन सुकून किया था बेरूत में बहुत सारे लोगों को लाने के लिए, और उसके बाद 2015 में येमेन में ऑपरेशन राहत किया था. ठीक है. इंडियंस को वहां से लाने के लिए ये तगड़े ऑपरेशन इन्होंने किए थे. There were a lot of controversies about US visa move. ठीक है. उन्होंने बोला that international students might have to leave the country. Okay, if their training program, that college is having online classes. हालांकि बाद में इन्होंने इसको चेंज कर दिया. Okay, students attending schools offering normal in-person classes, they can stay, but online classes, you can say they'll have to go back. सबसे ज़्यादा वहाँ पे अगर फॉरेन माइग्रेंट है, सबसे ज़्यादा अगर वहाँ पे फॉरेन माइग्रेंट है, ठीक है, तो वो चाइना से है. नंबर 2 इंडिया का है. ओके, चलिए, ग्रेट. दोस्तों प्रो टैलेंट का टेस्ट सीरीज और प्रो टैलेंट का स्टडी मटेरियल लेना भूलिएगा मत. दैट्स अ वंडरफुल प्रोग्राम अवेलेबल. इट इज अवेलेबल थ्रू protalentdigital.com. okay, great, let's start. So there is 10% VAT on Google, Netflix by Indonesia. Why Indonesia is putting 10% VAT on, you can say, technology firm like Amazon, Netflix, Spotify, Google? इसके ऊपर क्यों लगा रहे हैं? ठीक है दोस्तों, एग्जैक्टली कोविड-19 क्राइसिस के अंदर, ठीक है, स्पेंडिंग पैटर्न हैज शिफ्टेड वेयर पीपल आर वर्किंग रिमोटली. ओके, अंडर दिस न्यू रूल, नॉन रेसिडेंट फॉरेन फर्म्स which sell digital products and services in Indonesia worth rupees 600 million रुपया ईयर, ठीक है ना, और जिसके पास मिनिमम 12,000 यूजर का ट्रैफिक है, उनको 10% वैट पे करना है. ये सुनो, ठीक है. ऑब्वियसली जिसमें नेटफ्लिक्स आ जाएगा, गूगल आ जाएगा, स्पॉटिफाई आ जाएगा, कितने सारी कंपनियां आ जाएगी, क्योंकि 12,000 यूजर तो बहुत ईजी है दोस्तों. 600 मिलियन रुपया, ठीक है, और वहाँ की करेंसी डॉलर के टर्म पे देखा जाए तो बहुत ही बुरी है. ठीक है भाई, आप ऐसा समझ लीजिए कि इट इज, यू कैन से, अवेलेबल एट $1 एट इक्वल टू फ्यू लाख रुपया. तो उसमें 600 मिलियन तो कितना छोटा अमाउंट है. ठीक है. ओके, इंडिया ने भी इस तरीके का इक्वलाइजेशन लिवाई किया है ऑन नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स कंपनीज. ठीक है, विच इज सम अराउंड 2% सो फार इक्वलाइजेशन लिवाई. ठीक है. सो उनका ये ऑब्जेक्टिव है कि जो भी ई कॉमर्स प्लेयर है ना, अगर वो इंडिया में काम करेगा और वो NRI है और नॉन रेसिडेंट है, जरूरी नहीं इंडियन हो, बट अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो उसको ये पेमेंट करना है. ठीक है. गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स दैट ई कॉमर्स कंपनीज टू डिस्प्ले कंट्री ऑफ ओरिजिन फॉर द आइटम सोल्ड. अमेजोन ने चालू कर दिया है, आपने देखा होगा. उनकी जो प्रोडक्ट आती है पैक करके, वहाँ बड़े अक्षर में लिखा होता है दी प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिन करके. ठीक है. सो दोस्तों ये
मतलब जो फॉरेन के कोई भी ऐसे ई कॉमर्स प्लेयर हैं उनको एक तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाने के लिए ऐसा किया हुआ है. जॉनसन एंड जॉनसन विच इज ए यूएस बेस्ड कंपनी, ठीक है, हैज रिड्यूस्ड द प्राइस ऑफ लाइफ सेविंग ओरल ड्रग कॉर बेडाक्विलिन. ठीक है, इफ एनीवन नोज बेडाक्विलिन किसके लिए यूज होता है तो बताइए दोस्तों. ठीक है, चलिए आई एक्सप्लेन. बेडाक्विलिन इज यूज्ड टू ट्रीट ड्रग रेजिस्टेंट टीबी. ओके, बेडाक्विलिन cost some around $340 for a 6-month regime for 135 eligible countries including India. ठीक है, till now it was available at a discounted price of $400. अब इसको इन्होंने रिड्यूस कर दिया है. ठीक है दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत में टीबी का फैलावा बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ पे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी काफ़ी ज़्यादा लेवल पे है. ठीक है, और इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है. टीबी में अगर देखा जाए सो बेडाक्विलिन वाज वेरी सक्सेसफुल मेडिसिन. ठीक है, इट वाज इंट्रोड्यूस 50 ईयर अगो. ठीक है, इंडिया अकाउंट्स फॉर मोर देन अ क्वार्टर ऑफ ऑल केसेस वर्ल्ड वाइड. पूरे वर्ल्ड में जितने भी केसेस हैं उसमें 25% केसेस ऑफ टीबी आर देयर विथ इंडिया. ओके, देयर इज फेमस प्राइज कॉल्ड कोचोन प्राइज. ठीक है, इज अवॉर्डेड you can say annually by Stop TB Partnership. ठीक है, to individual and organization that have made a significant contribution to combat TB. Okay, so J&J, that is Johnson and Johnson, is a partner with Stop TB group. Okay, this is wonderful. और उसके साथ साथ एक TrueNet के बारे में भी बात हो रही है. Indian Rapid Molecular Technology TrueNet is now included in WHO guideline and recommended for point of care testing to remote setting for tuberculosis. So कहीं दूर दूर किसी को टीबी हुआ है तो उसका टेस्टिंग कैसे किया जाए. So there is a TrueNet which is TB diagnostic tool. ये होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों. ठीक है, it is first Indian TB diagnostic technology. ठीक है ना, WHO ने अप्रूव किया है उसको. It is developed by Goa based Molbibo और Mol Bio Diagnostic. ठीक है, which is rolled out TrueNet Medicine. ठीक है, चलिए ग्रेट दोस्तों. ठीक है, और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों, इसको पढ़ लीजिएगा. इसकी PDF आपको protalentdigital.com से मिलेगी. आई एम श्योर यू आर अवेयर अबाउट व्हाट इज हर्ड इम्यूनिटी एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव फॉर कोविड-19 एज ऑफ नाउ. व्हाट इज हर्ड इम्यूनिटी? ठीक है दोस्तों, लेंसेट एक यूके बेस्ड मेडिकल जर्नल है, इन्होंने पब्लिश किया है कि भाई हर्ड इम्यूनिटी is very difficult to achieve. So it refers to a situation where certain percentage of the population has this infection due to which, ठीक है, अब इन्फेक्शन मतलब वायरस का स्प्रेड अब नहीं होगा. ठीक है, वायरस का स्प्रेड रुक जाएगा. ठीक है, इट प्रिवेंट्स द इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन. दैट इज नोन एज हर्ड इम्यूनिटी. दोस्तों, इट इज जनरली यूज इन द नेम ऑफ वैक्सीनेशन. ठीक है दोस्तों, डिजीज टू डिजीज ये परसेंटेज ऑफ पीपल वेरी करते हैं कि कितने लोग होने चाहिए. कोरोना के केस में ये नंबर तो काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, 70-80%. यस और नो, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दिस हर्ड इम्यूनिटी? क्या लॉजिक है इसके पीछे का? द प्रीमाइस इज दैट certain percentage of people are immune, so this number of people are no longer infecting other people. तो अगर 70% लोगों को कोरोना हो गया, ठीक है, तो अब वो बाकी लोगों को तो कैसे करेंगे, क्योंकि वो लोग अंदर अंदर एक दूसरे के साथ घूमते रहते हैं. सो अगर मुझे कोरोना हुआ और हम 40 लोग हैं क्लास के अंदर, तो 40 लोगों के अंदर सबको कोरोना है, तो फिर कैसे नए लोगों के पास तो जाने वाला नहीं है. दैट इज अ लॉजिक. ओके, ठीक है, चलिए ग्रेट दोस्तों. ठीक है भाई, साइंटिस्ट क्या ये कंक्लूजन पे कैसे आए? ठीक है, उन्होंने बोला थ्रू अ लार्ज स्केल यू कैन से सेरो एपिडेमोलॉजिकल स्टडी. दोस्तों, आपने देखा होगा कि सेरो एपिडेमोलॉजिकल स्टडी दिल्ली के लिए भी हुआ था और वहाँ पे ये नंबर आया दैट 23% ऑफ दिल्ली लाइट्स आर हैविंग कोरोना. अभी रिसेंटली अहमदाबाद का भी डेटा आया एंड अहमदाबाद का डेटा आया इट इज़ 49% of Ahmedabad population is affected by SARS-CoV-2. ठीक है, so this is sero epidemiological study. बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों. ठीक है, sero prevalence study is largely provide information about the previous exposure to the virus. दोस्तों, ये जो एंटीबॉडी है ना, वो लंबे समय तक टिकती नहीं है, इसलिए वी डोंट नो कि किस तरीके से ये दुनिया आगे बढ़ेगी. ओके, चलिए ग्रेट दोस्तों. प्राइम मिनिस्टर हैज डेडिकेटेड 750 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट known as रेवा.
ठीक है, रेवा के पास मध्य प्रदेश में बनाया गया था, ठीक है, और मोदी साहब ने गलती से बोल दिया दैट इट वाज द लार्जेस्ट ऑफ एशिया। लार्जेस्ट नहीं है, ये पक्का है, ठीक है। इट इज अ एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म अभी हमने देखा सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप, ये सुनो, ठीक है। झारखंड ने सेंटर के खिलाफ केस कर दिया, अब यहाँ पे है कि सेंटर और स्टेट दोनों साथ में मिलके काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर काम किया है। सो कंपेयर टू प्रिवेलिंग सोलर प्रोजेक्ट टैरिफ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4.5 रुपीज पर यूनिट, ठीक है, रेवा इज गोइंग टू अचीव इट एट 2.97 रुपीज पर यूनिट। सो इतना सस्ता इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा। सो दिस इज वंडरफुल दोस्तों, ये पता होना चाहिए। इट इज रिसीव्ड वर्ल्ड बैंक का फंडिंग, ठीक है, इट इज ऑल्सो रिसीव्ड वर्ल्ड बैंक ग्रुप का प्रेसिडेंट्स अवार्ड, ठीक है, और इट वॉज इंक्लूडेड इन प्राइम मिनिस्टर्स अ बुक ऑफ इनोवेशन, ठीक है, उसमें भी इंक्लूड किया गया है। इट इज ऑल्सो फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट टू सप्लाई इंस्टीट्यूशनल कस्टमर आउटसाइड ऑफ द स्टेट। दिल्ली मेट्रो को ये लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इंस्टीट्यूशनल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, बहुत अच्छी बात है। मंगोलियन कंजूर, ठीक है, इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने बोला दैट वी आर डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट ऑफ रीप्रिंटिंग 108 वॉल्यूम्स ऑफ मंगोलियन कंजूर, ठीक है, अंडर नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट, और वो पब्लिश होगा 2022 मार्च तक, ठीक है। सो व्हाट इज दिस नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट? इट वाज लॉन्च्ड इन फरवरी 2003, ठीक है। इट इज अ मैन मेड, ठीक है, काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल। अब उस डॉक्यूमेंट इतने पुराने हैं, उसको किस तरीके से कंजर्व करना, उसका नॉलेज दूसरों के तरफ कैसे डिसेमिनेट करना, उसके बारे में बात हो रही है। द ऑब्जेक्टिव इज टू पब्लिश रेयर एंड अनपब्लिश्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, ओके। सो ये ध्यान रखना, व्हाट इज मैन्यूस्क्रिप्ट? इट इज बुक और डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड, मैन्यूस्क्रिप्ट हाथों से लिखी गई चीज, ओके, ठीक है। सो व्हाट इज मंगोलियन कंजूर दोस्तों? इट इज अ बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट। व्हाट इज कैनोनिकल? इट इज अ सेक्रेड बुक विच कंटेन्स कैनन, कैनन मतलब रूल्स, उसमें आते हैं, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ मंगोलिया, ठीक है। इन मंगोलियन लैंग्वेज कंजूर मीन्स concise order, and this is a word of Lord Buddha, okay. Mongolian worship Kanjur at the temples and recite the lines of Kanjur in their daily life. जैसे हमारे यहाँ पे हनुमान चालीसा, गायत्री चालीसा है ना, गायत्री मंत्र कैन से पढ़े जाते हैं, उसी तरीके से, ठीक है। Kanjurs are kept almost in every monastery. Mongolian Kanjur has been translated from Tibetan. The language of Kanjur is a classical Mongolian. उसको हम translate करने वाले हैं. That is what India is doing. First PC Mahalanobis National Award has been established and it is conferred to Dr. C. Rangarajan. He remained ex-RBI governor. PC Mahalanobis is known as father of Indian statistics. ठीक है। सो दोस्तों, इनके नाम पे ये नया अवार्ड बनाया गया है और इन्हीं के नाम पे नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है, उनके बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर। ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। डॉक्टर सी रंगराजन वाज अ फॉर्मर चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन एंड आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है, ओके। सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। नेपाल ब्लैक्स आउट इंडियन न्यूज चैनल। सो नेपाल विल नॉट अलाउ फॉरेन टीवी channels that indulge in the character assassination of their leader, and also they are impacting the country's reputation. So नेपाल ने बोला ऐसे सभी न्यूज आउटलेट को हम बैन करेंगे, ठीक है। दोस्तों, दूरदर्शन is exempted. All Indian news channels are blacked out except दूरदर्शन, ठीक है। Not just foreign but even domestic TV channels will be regulated if they found to be airing offensive content and character assassination. ये क्यों? आपने देखा होगा केपी शर्मा ओली साहब का कोई चाइनीज एक ऐसे लेडी के साथ, मतलब चाइना के एम्बेसडर है जो नेपाल में है, उनके साथ कोई रिलेशनशिप है और वो रिलेशनशिप ये न्यूज़ वाले भरपूर दिखाते थे। सो दैट इज वाउ डिसरिस्पेक्टिंग नेपाल सोवरेनिटी, ऐसा उनको लग रहा है। लेट्स सी हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। अभी हमने देखा ड्रॉपलेट एंड एयरबॉर्न ट्रांसमिशन कनंड्रम। WHO ने इस बात को एक्नॉलेज कर दिया दैट इट इज पॉसिबल किस तरीके से होता है। देखिए दोस्तों, क्या हुआ, एक बंदा था जो इन्फेक्टेड है, उसने बड़े बड़े ड्रॉपलेट निकाले जो
यू कैन से, है ना, इस तरीके से बिस्तर पे आ गए, हाथों पे आ गए, और इसके द्वारा दे आर डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद दिस पर्सन, ठीक है। पर ऐसे ड्रॉपलेट न्यूक्लाई जो बहुत छोटे छोटे हैं, जो एयरबॉर्न रहते हैं, और ये एक बंदे को इन्फेक्ट करते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर, ग्रेट। सो व्हाट इज ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, ठीक है, व्हेन अ पर्सन is within 1 meter of the infector, and when that person coughs or sneezes, and thereby is exposing the other guy, such droplets are generally greater than 5 to 10 micrometer, okay, in diameter, while airborne transmission requires it a very small, less than 5 micrometer. This is huge, okay. They can be transmitted to others over distances greater than 1 meter, ठीक है। तो वो 2 गज की दूरी है ना, उसका तो कोई पॉइंट ही नहीं है। 5 माइक्रोमीटर को समझना है तो आप समझ लीजिए कि हमारा जो हेयर है वो 50 माइक्रोन डायमीटर का होता है, 50 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है, उसका एक ऐसे 1/10 साइज का ये ड्रॉपलेट होता है, ठीक है। हम सब लोग मुंह से निकालते हैं, दैट इज रियली पॉसिबल, ठीक है। बायोसाइड ओवर यूज इज डेंजरस, है ना, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड बायोसाइड, ठीक है। दिस इज एक तरीके से बायो को मार डालना, ठीक है। दिस आर यूज टू डिस्ट्रॉय एंड कंट्रोल एनी हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स बाय केमिकल और बायोलॉजिकल मीन्स, ठीक है। क्या क्या यूज होता है, अल्कोहल आप जब हाथ में यूज करते हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये सब होता है, ठीक है। नाउ रिसेंटली बायोसाइड्स आर यूज, है ना, लोग अपने हाथ साफ करने के लिए बायोसाइड यूज करते हैं, बट दैट इज इम्पैक्टिंग एनवायरमेंट, और इसकी वजह से ये काफी दिक्कतें आ रही है दोस्तों। वेस्ट बंगाल इज हाईली वल्नरेबल, ठीक है। आपने देखा होगा इट हैज अ हिस्ट्री ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ सीवियर साइक्लोन्स इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। सो दोस्तों ये बड़ी परेशानी है, और क्लाइमेट चेंज अगर हुआ और वो अगर बड़े लेवल पे हुआ तो वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड बांग्लादेश के कोस्टल रीजन will get affected in a big way. So when I was watching one, you can say, show on BBC Earth, it was a cooking show. The Rick Stein करके एक भाई साहब है, यूके के भाई साहब हैं, when he visited this Bay of Bengal, that is Kolkata, he said कोलकाता में it is common कि जब बारिश होती है तो मतलब रास्ते में पानी भर जाता है, एंड पीपल आर वेरी अकस्टम्ड टू सच काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। सो ये इंडिया का पहला असेसमेंट रिपोर्ट था। इस असेसमेंट रिपोर्ट में वेस्ट बंगाल को मोस्ट वल्नरेबल माना गया, ठीक है। इट इज यू कैन से ऑन एन एवरेज 365 दिनों में से 80 से 100 दिन उनकी परेशानी में बीतते हैं, ठीक है। हाजिया सोफिया मॉस्क के बारे में बात हो रही है दोस्तों। एक ज़माने में ये कैथेड्रल हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद वहाँ के जो एक ऐसे कमाल अतातुर्क, ही रिमेन अ वेरी सेक्युलर लीडर ऑफ टर्की, है ना। ये टर्की में आया दोस्तों, है ना। आप कभी भी टर्की का कोई भी फोटोग्राफ देखोगे, टर्की के बारे में कोई भी डॉक्यूमेंट्री देखोगे, ये आपको पक्का दिखेगा, है ना। ये जगह आपको पक्का दिखेगी, हाजिया सोफिया, ओके। सो दोस्तों recently I was watching a movie which was about you can say this angel वाला मूवी कौन सा है, जो 3 लड़कियां हैं, वो you can say लड़की है, ठीक है। वो चार्लीस एंजल, यस, चार्लीस एंजल्स में भी ये दिखाया गया था, जो लेटेस्ट मूवी थी उसके अंदर, हाजिया सोफिया, ठीक है। तो कमाल अतातुर्क ने उस कैथेड्रल को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। अभी हमारे सामने रिसेप तैयब अर्दोगान साहब ने बोल दिया दैट इट विल बी नाउ मॉस्क। सो ही इज you can say Muslim supported, you can say, leader, okay. He is Muslim supported, okay. So Hagia Sophia, which literally means holy wisdom, Sophia means wisdom, ठीक है। It was built by Byzantine Emperor Justinian I ने बनाया था करीबन 6th सेंचुरी में, ठीक है, ओके। और उसके बाद उसमें कैथेड्रल बनाया गया, ठीक है। एम्परर ने उसको 537 AD में वापस एक इनसे चालू किया। कमाल अतातुर्क ने इसको कैथेड्रल से म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया, ओके। चलिए ग्रेट दोस्तों। सो कैथेड्रल वाज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है भैया। चर्च के बाद मॉस्क बना, मॉस्क के बाद म्यूजियम बना, म्यूजियम के बाद वापस मॉस्क बन गया, ठीक है। ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है ना। ऑटोमन एम्पायर ने जब इसको अपने हाथ में ले लिया था, ठीक है, तब उन्होंने उसको एक ऐसे मॉस्क में कन्वर्ट किया। फिर मुस्तफ़ा कमाल हमने बात करी, उन्होंने उसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया था। अब वापस रिसेप तैयब अर्दोगान साहब ने, बिकॉज टर्की इज इंटरेस्टेड टू मेक द एंटायर पॉलिटिक्स, है ना, इस्लामिस्ट, दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट। कुवैत
to reduce their foreigners. ठीक है, कुवैत नेशनल असेंबली is discussing several proposals to reduce the share of foreigners in their country's population. ये कोशिश करते हैं Indians should not exceed 15% of कुवैती nationals, है ना, बांग्लादेशी, इजिप्शियन एंड फिलिपिनोस, ठीक है, they should not exceed 10% of that. ठीक है, so ideal population structure is to have 70% of Kuwaiti and 30% non-Kuwaiti as per Kuwaiti we can say president. Okay, so दोस्तों देखिए 43 लाख पॉपुलेशन है उनका, उसमें कुवैती आर 13 लाख, ठीक है, इंडियंस आर अराउंड 14 लाख, ठीक है, ह्यूज है दोस्तों. तो ये कंसर्न काफ़ी है उनके. कोविड-19 स्प्रेड हो रहा है तो मदद किसको करनी है, कुवैती को मदद करें कि बाहर वालों को मदद करें. ये बड़ी परेशानियां हो गई है जिसकी वजह से उनके जो डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक क्राइसिस है वो बढ़ने लगे. ठीक है, और इसी के लिए ये कहानी है. GCC कंट्रीज, दैट इज you can say गल्फ, you can say कोऑपरेटिव कंट्रीज का जो ग्रुप है वहाँ पे भी बहुत सारे इंडियंस हैं. ये देखिए दोस्तों, GCC कंट्रीज कौन कौन से हैं? सऊदी अरेबिया, UAE, कतार, कुवैत, ओमान एंड बहरीन. ठीक है, सो यहाँ पे भी बहुत सारे इंडियंस वहाँ पे, और वहाँ पे स्ट्रक्चर काफ़ी बदल रहा है. बहुत सारे इंडियंस हैं और ये लोग इंडिया को निकालना चाहते हैं. ठीक है, there is another corporate fraud which is coming, which is to the tune of 705 crore. Now it is GVK group. Okay, उन्होंने क्या किया है? They are siphoning off the funds. ठीक है, what is the meaning of siphon off? देखते दोस्तों 2 मिनट. ठीक है, इसके पहले सत्यम का एक बड़ा सा फ्रॉड हुआ था दोस्तों. उन्होंने बहुत सारी जैसे ज़मीन, बहुत सारी प्रॉपर्टीज अपने नाम पे कर दी थी. किंगफिशर का फ्रॉड हुआ. ठीक है, उन्होंने एयर डेक्कन खरीदने में जैसे पता नहीं कहाँ से पैसे लेकर आए थे. HDIL है ना, उन्होंने ये दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लिया. उस समय पे उन्होंने बड़ा सा गफला किया. और नीरव मोदी का एपिसोड तो फेमस ही है दोस्तों. ठीक है, सो व्हाट आर द चार्जेस ऑफ CBI? प्राइमरी चार्ज इज यू कैन से perpetrating a loss of 310 crore to the exchequer by entering into the fake work contract. ठीक है, the remaining amount of 395 crore was kept in reserve in Hyderabad, but it was not in Mumbai, and many employees of GVK group were transferred to MIAL with the sole objective of getting salaries paid from MIAL and not through GVK. So मतलब काफ़ी ज़्यादा गफला इन्होंने किया है. सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द राइट्स ऑफ त्रावणकोर रॉयल फैमिली. दोस्तों 2011 में केरला गवर्नमेंट ने बोला था त्रावणकोर रॉयल फैमिली के पास कोई अधिकार नहीं होंगे. कौन से मंदिर के लिए? द श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल तिरुवनंतपुरम में ये टेम्पल के राइट्स, चलाने के राइट्स किसके पास होंगे? बोला ये राइट्स होंगे स्टेट गवर्नमेंट के पास. ऐसा केरला हाईकोर्ट ने बोल दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया. क्या किया समझते हैं दोस्तों. ठीक है, सो देयर वाज अ शिबत राइट. शिबत का मतलब होता है पर्सन हु सर्व्स द हिंदू डेटी एंड मैनेजेस द टेम्पल, दैट इज कॉल्ड शिबत. ओके, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट एज पर द कस्टमरी लॉ, राइट टू मैनेज एंड फाइनेंशियल अफेयर ऑफ अ डेटी व्हिच इज कॉल्ड शिबत राइट्स सर्वाइव विद द फैमिली इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट रूलर. तो यहाँ जो लास्ट रूलर की डेथ हो गई उसके बाद भी उनके परिवार का वालों के पास ये राइट होंगे ना, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला. दोस्तों ये समझिए एग्जैक्टली हुआ क्या. ठीक है, ऑल टेम्पल्स विच वर बिल्ड अंडर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ त्रावणकोर एंड कोचीन, ठीक है, दे वर प्रिंसली स्टेट्स, दे वर इन कंट्रोल ऑफ त्रावणकोर एंड कोचीन, दे वर सम बोर्ड बिफोर 1947. फिर जब उन्होंने प्रिंसली स्टेट ने इंडिया में ज्वाइन किया, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, ठीक है, इट वाज साइन बिटवीन प्रिंसली स्टेट ऑफ कोचीन एंड त्रावणकोर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सिंस 1949 द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पद्मनाभ स्वामी टेम्पल वाज वेस्टेड इन द ट्रस्ट which was developed by the ruler of the Travancore. State government was carved out in 1956. ठीक है, but temple was managed by this royals. ठीक है, अब ये हुआ 1971 में एक मजेदार सी चीज हुई. 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आया गया जहां पे एंटाइटलमेंट एंड प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय द अर्स्टवाइल रूलर्स वर स्ट्रिप्ड ऑफ. ठीक है, उनको निकाल दिया गया. ठीक है, उनके पास जो भी उनको बेनिफिट जो भी उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था सरकार के साथ, उसमें सरकार ने बोला था वी आर गोइंग टू गिव यू बेनिफिट्स, हम आपको बेनिफिट देंगे, पेंशन देंगे, है ना, कुछ चीज़ों के एंटाइटलमेंट देंगे. ये उन्होंने सब बंद कर दिए.
यस नो। अब उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद ये जो टेम्पल और जो प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, दे वर यू कैन से इन द हैंड्स ऑफ रॉयल्स। स्टेट ने बोला हमारे पास होना चाहिए, तो दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारी जगह पे लड़ाइयाँ हुई। वन ऑफ देम इज दिस, केरला हाई कोर्ट ने 2011 में इसका जजमेंट दिया दैट स्टेट टू टेक ओवर द टेम्पल, ठीक है। त्रावणकोर रूलर श्री यू कैन से चिथिरा थिरुनाल बालाराम वर्मा वॉज डाइड इन 1991, और इसकी वजह से स्टेट के पास पावर चला गया, क्योंकि रूलर तो अब रहे नहीं, रूलर रहे नहीं तो शिब्बेत राइट तो अब सीधे सरकार के पास आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट द डेथ ऑफ रूलर डज नॉट अफेक्ट द रॉयल फैमिली शिब्बेतनेस, ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और शिब्बेतशिप इज ऑलवेज विद रॉयल फैमिली एंड द रूलर रिप्रेजेंटेड बाय देम, ठीक है, तो ये उनको मिलेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने शिब्बेत का जो वर्ड है वो उन्होंने बताया, इट इज अ कस्टोडियन ऑफ आइडल। इट ट्रेस्ड दैट हाउ शिब्बेतशिप डिसेंडेड फ्रॉम किंग यू कैन से मार्थानंद वर्मा to current one, okay, this is how they developed, okay. I'm sure all of you are able to understand this. So what will happen to the properties? Will property go to the royal family? Obviously no, ठीक है, क्योंकि ये जो टेम्पल है it is always recognized as public institution which is governed by statute, which means शिब्बेत राइट उनके पास रहेंगे बट स्टिल इट इज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सो लोग वहां पे आते जाते रहेंगे। अब ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रखनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट इश्यूड स्ली ऑफ डायरेक्शंस फॉर ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इट डायरेक्टेड सेटिंग अप ऑफ सम एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी, ठीक है, और ये कमिटी उसका डे टू डे के ऊपर ध्यान देगा, ठीक है। अब ये रिच ट्रेजर का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड सेकंड कमिटी to be constituted on the advice of this policy. This would be chaired by retired high court judge, ठीक है। उनका ड्यूटी होगा किस तरीके से ये ट्रेजर्स और प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करना है। तो ये लड़ाई थी प्रॉपर्टी की नहीं थी, ये लड़ाई थी शिब्बेतशिप की, ओके। आई होप इट इज वेरी क्लियर, ग्रेट। इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप अप्रूव्ड लार्ज स्केल चेंजेस टू मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग हाईवेज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल, ठीक है, ताकि एक तरीके से जो फाइनेंशियल रिस्क है उसको कम करने की कोशिश हो रही है। तो इन्होंने अप्रूव कर दिया है दोस्तों, ठीक है। किस तरीके से ये नया सिस्टम आया समझिए दोस्तों। नए सिस्टम में आप क्या करेंगे, एक कंसेशन दिया गया, बिल्ड आप करेंगे, ठीक है ना, ऑपरेट करेंगे। आपने जो बिल्ड किया उसमें जो आपका खर्चा हुआ, ठीक है, वो खर्चा जब आप ऑपरेट करेंगे तब आप निकाल लेंगे। फिर सब आपका खर्चा निकल गया, देन यू विल ट्रांसफर इट टू दी गवर्नमेंट, ओके। दिस इज व्हाट दे हैव डन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट डिसेबल्ड्स आर एंटाइटल्ड टू सेम बेनिफिट्स एज SC ST कोटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, है ना, ये बिल्कुल जरूरी है। SC ST को जिस तरीके से रिजर्वेशन मिलता है उसी तरीके से इनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए दोस्तों। द 3 जज बेंच upheld 2012 judgment of Delhi High Court in Anamol Bhandari case. Supreme Court ने बोला Anamol Bhandari, in the Anamol Bhandari case, High Court has correctly held that people suffering from disabilities are also socially backward, ठीक है, they also need some entitlement just like SC and ST people are getting, ठीक है। Iran drops India from Chabahar's rail project। दोस्तों ये समझ लीजिए, हमने यहाँ पे उनके लिए एक चाबहार पोर्ट बना के दिया है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से एक ट्रेन का रूट जाने वाला था जायदान तक, और वहाँ से जरांज दिलाराम हाईवे ये इंडिया ने बना के रखा है अफगानिस्तान के अंदर, ओके। सो ये चाबहार पोर्ट से जायदान तक का रेलवे लाइन इंडिया मदद करने वाला था, पर इंडिया काफ़ी डिले कर रहा है और इसकी वजह से ईरान ने बोल दिया हम अकेले करेंगे, ठीक है। सो रेलवे प्रोजेक्ट वॉज अ पार्ट ऑफ ट्राइलेटरल एग्रीमेंट, ठीक है, इट वॉज बिटवीन इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान, और इंडिया ने अच्छे से रिस्पॉन्स दिए नहीं और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन वंस अगेन इन द न्यूज, HCQ बोलते हैं, ठीक है। इट हैज बीन कॉन्ट्रोवर्शियल विदाउट क्लैरिटी और क्लियर एविडेंस कि ये किस तरीके से कोविड-19 में यूज होता है पता ही नहीं है दोस्तों। एक साइंटिफिक पेपर लैंसेट में लगाया गया था, ठीक है, which was made, WHO withdrew it from the solidarity study। उन्होंने बोल दिया कि we are not supporting this HCQ, ठीक है। within days
when it became evident that Lancet article was based on doubtful data, immediately WHO reintroduced HCQ on this solidarity trial, and which is happening. डेट्रॉइट में हो रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है ऐसा माना जाता है. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेडिसिन इज यूज्ड फॉर मलेरिया एंडेमिक जोन पे होता है दोस्तों, मलेरिया में हो रहा है ये, है ना. और ये कोरोना पे कैसे असर करता है उसकी स्टडी करना अभी बाकी है. ठीक है. सो क्लोरोक्विन एंड सिंचोना, ठीक है, इसका यूज हो रहा है वेस्ट बंगाल में. ठीक है. और ये बोलते हैं कि हम इसको प्लांट करेंगे और हम इसका सिंथेटिक ड्रग बनाने की कोशिश करेंगे. प्लांटेशन काफ़ी ज़्यादा एकड़ में फैला हुआ है. ठीक है. बट हैव बीन क्लोज फॉर 15 ईयर्स नाउ. अब इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. हाईएस्ट टेम्परेचर एवर इन आर्कटिक सर्कल. ठीक है. आपको याद होगा ये एक वर्खोयस करके जो जगह है साइबेरिया में, इट हैज रिकॉर्डेड मोर देन 380 सेल्सियस ऑन जून 17. ठीक है. नॉट 380, सॉरी, इट इज 38 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. विच इज हाइएस्ट टेम्परेचर इन आर्कटिक. आर्कटिक में 38 डिग्री, ह्यूज, डेफिनेटली ह्यूज. ठीक है. व्हाट आर द रिपरकशंस. ठीक है. आइस मेल्ट होना चालू हो जाएगा लेप्टिव सी के अंदर, तो उसका लेयर बढ़ेगा. ठीक है. आर्कटिक सी का आइस भी मेल्ट होना चालू होगा. ठीक है. देयर बी वाइल्ड फायर्स इन साइबेरिया, उसकी वजह से होगा. ड्राइंग जोन डेवलप हो जाएगा एंड ये जो ब्लेजेस हो रहे हैं इसको ज़ॉम्बी फायर बोलते हैं, और वहाँ का जो परमाफ्रॉस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है. ठीक है दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है. ज़ॉम्बी फायर, इट इज़ अ फायर दैट कंटिन्यूज टू बर्न अंडरग्राउंड एंड देन रीइग्नाइट्स ऑन द surface after a period of time, and this is what happening at Arctic Circle. दोस्तों, इसके साथ हम आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं. आई एम श्योर आप सब लोगों को मज़ा आया होगा. ये सेशन protalentdigital.com पे PDF फॉर्मेट में मिलेगा दोस्तों, इसको लेना भूलिएगा मत. ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, हमें लाइक करिए दोस्तों, और दूर दूर तक ये बातें फैलाइए अबाउट प्रो टैलेंट. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.